المساواة أن تكون المعاني بقدر الألفاظ، يعني أن تكون المعاني مثل الألفاظ والألفاظ مثل المعاني، لا يزيد بعضها على بعض، لا يزيد الألفاظ ولا المعاني، نہ الفاظ زیادہ ہوں نہ معانی زیادہ ہوں، دونوں بھی برابر برابر ہوں، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ اچھا اس کے امثلہ دیکھیں مساوات کے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہے؟ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، کہ جو کچھ تم کیا کرو گے، جو کچھ تم بھلائی اپنے لیے آگے بھیجو گے، اپنے آپ کے لیے بھلائی آگے بھیجو گے، من خیرین بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ وما تقدموا، اور جو کچھ تم بھیجو گے آگے، لانفسکم اپنے نفسوں کے لیے، من خیرین بھلائی، تجدوہ عند اللہ، تو تم اس کو کہاں پاؤ گے؟ اللہ کے پاس تم اس کو پاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب اس کی تشریح دیکھیں۔ یہاں پر آؤ، یہ اچھا بحث میں پہلے پورے ایک ہی ساتھ پڑھ لیں گے؟ نہیں، پہلے یہ دیکھ لو اس کے بعد پڑھیں گے۔ اچھا پورے امثلہ کا ایک ساتھ ہی ہے۔ ہاں دوسری مثال دیکھیے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور نہیں گھیرتی ہے المکر السیء، برا دھوکہ، بری کیا ہے، کیا بولیں گے اس کو، بری تدبیر نہیں گھیرتی ہے، الا باہلہ، مگر اس کے اہل کو، مطلب کوئی بری تدبیر اختیار کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، تو وہ برا کام اسی کو لپیٹے میں لیتا ہے، اس کا۔ اچھا جی، نمبر 3 ایگزامپل دیکھو، وقال النابغہ الزبیانی، نابغہ الزبیانی کہتا ہے، فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَأَ عَنْكَ وَاسِعُ، عنك فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ، آپ رات کی طرح ہیں، آپ اس رات کی طرح ہیں، الذی، جو، ہوا مدرکی، جو مجھ کو پانے والی ہے، وَإِنْ خِلْتُ، ہاں اگرچہ کہ میں خیال کروں، ان المنتع، کہ ان المنتع، کہ دوری، عن کا، آپ سے، واسع، لمبی ہے، دراز ہے، میں اگرچہ کہ آپ سے دوری بہت دراز ہے خیال کروں، مگر رات مجھ کو، میں اس رات کی طرح ہوں جو پانے میں، مطلب کبھی نہ کبھی مجھ کو آپ سے ملنا ہی ہے، اب دن کتنا بھی بڑا ہو مگر رات کو تو پانے والا ہی وہ کیسا بھی، کسی بھی حال میں، ایسے ہی۔ اچھا، وقالا طرفۃ بن العبد، اور طرفہ بن العبد کہتا ہے، کیا کہتا ہے وہ، ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار ما لم تزودی، ہاں ان قریب زمانہ کیا کرے گا، ان قریب زمانہ تیرے لیے ظاہر کر دے گا، ما کنت جاہلا، ان چیزوں کو جن سے تو ناواقف تھا، ان چیزوں کو زمانہ کیا کر دے گا، ظاہر کر دے گا، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ، اور زمانہ ایسی خبریں لائے گا، من لم تزودی، جس کی کہ تو نے، ہاں، اور تیرے پاس ایسی خبریں لائے گا جس کی کہ تو نے کیا ہے، بالکل تیاری نہیں کی، یعنی تجھے کیا کر دے گا زمانہ، ایسی خبریں دے گا جس کی تو تیاری ہی نہیں کرا، مطلب تو ہی داغ۔ اچھا یہاں پر اس کے معنی میں دے رہا، اور ایسی خبریں تیرے پاس لائے گا زمانہ جس کا کہ تو نے توشہ ہی تیار نہیں کیا، تیاری نہیں کی، بولو جس کا تو نے توشہ تیار نہیں کیا۔ اچھا ایک ہو گیا یہ، اب بحث میں آئیے، یختار البلیغ للتعبیر اما فی نفسه طریقا من طرق ثلاث، کیا کرتا ہے بلیغ، فصیح اور بلیغ تعبیر کے لیے جو کچھ اس کے نفس میں ہے، اس کی تعبیر کے لیے وہ تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کو استعمال کرتا ہے۔ فہو تارتاً یوجز، کبھی وہ کیا کر دیتا ہے، مختصر کر دیتا ہے،
वतारतन युसहिबु, कभी वो क्या कर देता है, लंबा कर देता है, तवील कर देता है, डिटेल में बयान कर देता है। वतारतन यअती बिल इबारती बैना बैन, और कभी क्या करता, यानी बैन बैन इबारत को इस्तेमाल करता। बैन बैन मतलब ना बिल्कुल शॉर्ट ना बिल्कुल डिटेल, इन दोनों के बीच की इबारत को इस्तेमाल करता हो। अला हस्बी मा तख्तदी हालुल मुखातब, जो हाल मुखातब की जो हालत है उसके हिसाब से। वयदउ इलैहि मौतिनुल खिताबी, और क्या करता है वो, हाँ जी, और मकाम का तकाजा, मकाम के एतबार से, मकाम की जगह के एतबार, खिताब की जगह के एतबार से क्या करता है वो अल्फाज को इस्तेमाल करता है, मुखातब को, हाल को मुखातब करता है वो। वनुरीदु हुना अन नशरह हादिहि तुरुक़ अत-तलात, और हम यहाँ पर ये 3 तरीक़े आपके तशरीह आपके सामने करना चाहते हैं। सनब्दउ बिल मुसावात, हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले मुसावात से। क्यों? लिअन्नहल अस्ल, अल अस्लु अल मक़ीसु अलैहि, क्योंकि वही है जिसके ज़रिए क्या कर सकते हैं आप, अंदाज़ा कर सकते, जिसके ज़रिए अंदाज़ा कर सकते कि कम है या ज़्यादा है। बैन बैन रहा, अगर मुसावात रहा तो उसके ज़रिए आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शॉर्ट है या लॉन्ग है। इसीलिए पहले मुसावात का जिक्र करेंगे, ठीक है। तअम्मल अल अम्सिला अल मुतक़द्दिमा तजिद अल अल्फाज़ फ़ीहा बिक़द्र अल मआनी। आप सारे एग्जाम्पल में गुजरे हुए गौर करो तो आप पाएंगे कि मानी की बक़द्र क्या है, अल्फाज हैं वहाँ पर। व इन्नका लौ हावलता अन तज़ीद फ़ीहा लफ़्ज़न, और अगर तू चाहे यहाँ पर कोशिश करे कि एक लफ्ज़ बढ़ा दे, लजाअति ज़ियादतु फ़ज़लन, तो क्या हो जाएगा, तो ये ज़्यादती क्या हो जाएगी, बेकार जाएगी। फ़ज़लन मीन्स बेकार जाएगी, तो ये ज़्यादती बेकार होगी। औ अरदत इस्क़ात कलिमतिन, और अगर आप चाहे यहाँ पर किसी कलिमे को ड्रॉप करना, लकाना ज़ालिका इख़लालन, तो ये क्या हो जाएगा, कलिमे में, जुमले में खलल वाक़िअ हो जाएगा। खलल बोले तो डिस्टर्बेंस हो जाएगा। फ़ल-अल्फ़ाज़ु फ़ी कुल्लि मिसालिन मुसावियतुन लिल-मानी, तो ये अल्फाज हर मिसाल में क्या है, मानी के बराबर है, जितना माने हैं उतने ही अल्फाज हैं। वलिज़ालिका युसम्मा अदाउल कलाम अला हाज़ा नहवी मुसावात, तो इसीलिए इस कलाम की इस मेथड को, कलाम के अदा करने के इस मेथड को क्या नाम दिया जाता है, मुसावात। यानी जितने अल्फाज उतने मानी, जितने मानी उतने अल्फाज। पूरे एग्जाम्पल में देख लो, कुछ भी कमी, कहीं भी कमी नहीं कर सकते, और ना कहीं पर आपको और ज़्यादा तशरीह की ज़रूरत है, ठीक है ना। कुछ डाउट है पूछने का इसमें? नहीं नहीं सर। बच्चियों को बोलने दो, बच्चियों का नहीं अहमियत का हामिल है। हाँ आयशा सो गए क्या, लगा देंगे? नहीं सर, मैं अभी ज्वाइन हुई तो। अल्लाह अकबर, अभी ज्वाइन हुए, पूरा नहीं सुने? नहीं, मैं बहस शुरू करे वक्त देखी सर। कहाँ देखे, किताब में? पहले अंदर आती पहले की तो पेज नंबर पूछ लेना, घूमने में बैठ हाँ गई। नहीं, तब मैं जब ही ज्वाइन करी कॉल, जब आप अच्छा बहस शुरू करे तब मैं कॉल ज्वाइन करी। चलिए और एक बार दोबारा इरशाद कर देता हूँ, सुन लीजिए। अल कायदा देखो, पहला नंबर 1, अल मुसावात, मुसावात अन तकून अल मानी बेक़द्रि अल अल्फाज, के मानी हो अल्फाज के मकदार, जितने अल्फाज हैं उतने ही मानी हों। वल अल्फाज़ु बेक़द्रि अल मानी, और जितने मानी हैं उतने ही, जितने अल्फाज हैं उतने ही मानी हों। समझ गए? ला यजीदु बादुहा अला बाज़, उनमें से बाज़ के ऊपर ज़्यादा ना हो, मतलब ना कलीमे ज़्यादा, ना अल्फाज ज़्यादा होना, ना मानी ज़्यादा होना, दोनों भी बराबर बराबर रहना, उसको मुसावात कहते हैं, ठीक है। अब और एक बार आयत का तर्जुमा कर देता हूँ। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का इरशाद है अमसिला में, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, और जो कुछ तुम आगे भेजोगे अपने नफ्सों के लिए, मिन खैरिन भलाई, भलाई का काम करके, तजिदूहु तो तुम उनको पाओगे, इंदल्लाहि अल्लाह के पास। कुछ भी ना बढ़ के है ना कम है, अपना तशरीह की ज़रूरत है ज़्यादा अल्फाज बोल के, और ना ही आप कुछ कम करने की ज़रूरत है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये लफ्ज़ यहाँ पर ज़्यादा आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, कुछ भी नहीं बोल सकते। ऐसे ही दूसरी आयत है कुरान की, वला यहीकुल मक्र सय्यु इल्ला बिअहली, कि क्या है कि
बुरी तदबीर करने वाला क्या है, नहीं घेरती बुरी तदबीर करने वाले को, बुरी तदबीर करने वाले को नहीं घेरती मगर उसके अहल को। बुरी तदबीर नहीं घेरती मगर उसके अहल को, मतलब जो बुरी तदबीर करता है उसी को बुरी तदबीर क्या करती है, घेरती है, उसी को लपेटने में लेती है। अच्छा, वक़ाला नाबिगा ज़ुबियानी, नाबिगा ज़ुबियानी कहता है फ़इन्नका कल्लैलिल्लज़ी हुवा मुदरिकी, आप तो क्या हैं, उस रात की तरह हैं, जो आप उस रात की तरह हैं जो मुझे पा लेने वाली है। हाँ, व इन खिलतु, अगरचे कि मैं ख्याल करूँ, अन्नल मुंतआ, कि आपसे दूरी, इन्नल मुंतआ अन का, कि आपसे दूरी, वासिउन लंबी है, दराज है, बहुत ज़्यादा है, आपसे दूरी तो बहुत ज़्यादा है, ये ख्याल मैं अगर करा भी तो रात मुझको पा लेने वाली है, ये हो। ठीक। वक़ाला तरफ़त इब्नुल अब्द, और तरफ़ा कहता है सतुब्दी लकल अय्याम मा कुन्त जाहिलन, अनकरीब ज़माना तेरे लिए ज़ाहिर कर देगा उन चीज़ों को जिससे तू नावाकिफ़ था। वयाती का बिल अखबारी, और ऐसी ख़बरें वो लाएगा ज़माना, मन लम तुज़व्वदी, जिसकी तूने तैयारी ही नहीं की, जिसका तूने तोशा ही नहीं बनाया, वैसी ख़बरें क्या करेगा ज़माना लाएगा। ठीक है, इसमें पूरों में मुसावात है, पूरे ये 2 आयतों में और 2 अशार। ओके, अब ये भी पढ़ लूँ क्या, ये बहस एक बार पढ़ूँ, नहीं थे इसमें? नहीं सुने सर मैं बहस। ओके चलिए, अब ये इजाज भी पढ़ लेंगे, थोड़ा ही है इजाज। हाँ, नहीं कल पढ़ते हैं, जी सर, पढ़ लेंगे ना, थोड़ा ही पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे, चलिए पढ़ लेंगे। ऐसा बोल रहे हैं लगा के कहीं निकल जा रहे हैं क्या तुम लोग? नहीं सर, यहीं पे रह। नहीं जा रहे हैं ना, चलिए ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, अलकायदा अलकवाइद पढ़ लीजिए पहले इजाज के, अभी पेज नंबर 238 पे है, देखिए कवाइद है। गुलाम मोहम्मद साहब है, निकल गए? चले गए क्या गुलाम मोहम्मद साहब? चाय बन रही थी मुझ साहब। नहीं, गुलाम मोहम्मद साहब और लगा के चले गए, हाय लाइन दे दो। लगा के चले गए। अच्छा चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल इजाज़ु जमउल मआनी अल मुतकाथिरती, जमउल मआनी अल मुतकाथिरा तहत अल लफ्ज़ अल क़लीली मअल इबानति वल इफ़साही व हुवा अला नौअइन। इजाज़ कहते हैं कम अल्फाज के तहत ज़्यादा मानी को जमा करना इजाज़ कहलाता है। अल इजाज़ इजाज़ जमउल मआनी अल मुतकाथिरा, ज़्यादा मानी को जमा करना, तहत अल लफ्ज़ अल क़लीली, थोड़े लफ्ज़ों के तहत, मअल इबानती, वज़ाहत के साथ, वल इफ़साही, और सराहत के साथ, वह हुआ अला नौअइन, वो 2 किस्मों पे है। इजाज़ की 2 किस्में, समझ गए, तारीफ़ समझ गए इसके क़ायदे की। इजाज़ बहुत से मानी को जमा करना थोड़े लफ्ज़ के तहत, वज़ाहत के साथ और सराहत के साथ। ऐसा ना हो कि वो लफ्ज़ को थोड़े करने के चक्कर में मानी नहीं समझ में आ रही, वज़ाहत ही नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं होना, वो तो कलाम गैर मकबूल हो जाता फिर। ठीक है, माल इबानती वल इफ़साही शर्त है उसकी, वज़ाहत और सराहत के साथ थोड़े लफ्ज़ों के तहत बहुत से मानी को जमा करना क्या कहलाता है, इजाज़ कहलाता है। इजाज़ की 2 किस्में हैं, इजाज़ व क़स्र, इजाज़ व हस्र। इजाज़ व क़स्रिन किसको कहते हैं? इजाज़ व क़स्रिन व यकूनु बितज़मीन अल इबारात अल क़सीरती मानिया कसीरतन मिन गैर हस्ब। इजाज़ क़स्र की तारीफ़ क्या है? क्या है वो? मुख्तसर इबारतों को शामिल करना, वो इजाज़ुल क़स्र, इजाज़ क़स्र होता है मुख्तसर इबारतों को शामिल करना बहुत से मानी के साथ, बग़ैर किसी चीज़ को हज़फ किए हुए, उसको इजाज़ क़स्र कहते हैं। कोई भी चीज़ आप शॉर्ट नहीं करना, हज़फ नहीं करना, मुख्तसर इबारत रहना और मानी क्या रहना, बहुत सारे रहना, और उसमें हज़फ नहीं रहना, तो उसको इजाज़ क़स्र कहते हैं। अच्छा, उसका अपोजिट इजाज़ हस्फ है। वयकूनु बिहस्फि कलिमतिन, और इबारतें तो मुख्तसर हैं मगर बास कलिमों को आप वो इबारत मुख्तसर कैसा करें,
बिहस्फि कलिमतिन, किसी कलीमे को हज़फ करके करे, औ जुमलतिन, या जुमले को हज़फ करके करे, औ अक्सर, या फिर जुमले को और उससे ज़्यादा इबारतों को आप हज़फ करें, मआ क़रीनतिन, एक ऐसे क़रीने के साथ, तुअय्यिनु अल महज़ूफ़ा, जो कि महज़ूफ़ को क्या कर देते हैं, महज़ूफ़ को अच्छी तरह मुतअय्यन कर दे, तब वो क्या है, इजाज़े हस्फ़ है। ऐसा नहीं होना कि आप इतना बड़ा जुमला शॉर्ट कर दिए कि आपको वहाँ क्या शॉर्ट करे मालूम ही नहीं हो रहा, आपको तायीन ही नहीं हो रही क्या हज़फ हुआ सो वहाँ पर। तो अगर तायीन ना हो तो वो गैर मकबूल है, अगर तायीन हो तो वो उसका नाम है इजाज़े हस्फ़। ठीक है, कोई डाउट है क़वाइद में? नहीं सर। ये भाई ये इम्तियाज चले गए क्या? नहीं, आप अदनान, बच्चियों को बोला बोले तो। थोड़ी थोड़ी देर को आवाज़ लेना पड़ता है, तो लगा देंगे नहीं, आप खिदमत है। बच्चियों को बोला बोले तो खामोश बैठ गया। इम्तियाज कहाँ चले गए, नमाज को चले गए क्या? नहीं, आप बच्चियों का नहीं अहमियत का हामिल है बोले तो खामोश बैठ गया। सुन रहे हैं? अरे जी नहीं, सर। पहले तुम्हारी आवाज से पहले बच्चियों की आना, उसके बाद तुम्हारी भी आना, बोला मैं। होता है ऐसा भी बोले। हाँ हाँ, फिर समझ गए। इजाज की जी, दो किस्में हैं, इजाज व हस्र, जिसमें क्या है मुख्तसर इबारतें होना मगर मानी बहुत ज्यादा होना और कोई भी हज़फ नहीं होना उसमें। और इजाज व हस्फ किसको बोलेंगे, जिसमें कोई कलिमा हज़फ हो या जुमला हज़फ हो या उससे ज्यादा का हज़फ हो, मगर एक शर्त के साथ कि जो भी महजूफ हुआ उसकी तायीन होना, तभी वो जायज़ है, वरना गैर मकबूल है। तो इजाज़ हस्फ, इजाज़ क़स्र, अब इनके अमसिला देखिए, इजाज़ क़स्र और इजाज़ हस्फ के अमसिला देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या है पहला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, अला लहुल खल्क़ु वल अम्रु, सुन लो, अला माने अच्छी तरह सुन लो, लहुल खल्क़ु, उसी के लिए मखलूक है, उसी की ही तख्लीक भी उसी की है, वल अम्र, और मामलात भी क्या है, उसी का है। मतलब मखलूक भी उसी की है, हर आर्डर उसी का चलता है, अल्लाह ताला का। ठीक है, अच्छा जी, एक पैराग्राफ के पहले पूरे पढ़ लेंगे, पैराग्राफ की बहस है वहाँ, बहस में। अच्छा, वक़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अज़्ज़ईफ़ु अमीरुर रक्बी, कमज़ोर आदमी क्या है, काफ़िले का अमीर है। रक्बु के असल माने होता है जमाअतुल मुसाफिरीन, असल माना है उसका जमाअतुल मुसाफिरीन, मुसाफिरों की जो जमात है उसको कहते हैं रक्ब, माने काफ़िला। ज़ईफ़ अमीरुर रक्बी, ज़ईफ़ क्या है, कमज़ोर काफ़िले का अमीर है। और वकील ली आराबीन यसूक़ु मालन, और एक मरतबा एक आराबी से कहा गया, एक बदवी से कहा गया, एक गाँव वाले से कहा गया, यसूक़ु मालन कसीरन, जो कि क्या है बहुत से माल को ले जा रहा था, ऊँट पे या कहीं खच्चर पे कहीं पे डाल के ले जा रहा था। लिमन हादल मालू, तो उससे पूछा गया लिमन हादल मालू, किसका है ये माल? फ़क़ाला, तो उसने कहा लिल्लाहि फ़ी यदी, माल तो अल्लाह का है मगर मेरे हाथ में है। समझ गए क्या बोला वो? फ़क़ील ली जी समझ गए। अअराबी जी यसूक़ु सर। मालन कसीरन, जो कि बहुत से माल को ले जा रहा था। लिमन हादल मालू, किसका है ये माल? फ़क़ाला, तो उसने जवाब दिया लिल्लाहि फ़ी यदी, माल तो अल्लाह का है, फ़ी यदी, मगर वो मेरे हाथ में है। ठीक है, माल अल्लाह का है मगर मेरे हाथ में है। ये फर्स्ट पैराग्राफ होगा, फर्स्ट पैराग्राफ का वो पढ़िए एग्जाम, वो मिसाल बहस पढ़ी। तअम्मल अम्सिलत अत्ताइफ़तिल ऊला तजिद अन्ना अल्फाज़हा फ़ी कुल्लि मिसालिन अला क़िल्लतिहा जमअत मआनी कसीरा मुतज़ाहम। आप देखेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में कि अल्फाज क्या हैं, हर मिसाल में अल्फाज क्या हैं, अगरचे कि खलील हैं, खिल्लत यहाँ खलील हैं, लेकिन जमाअत मानी कसीरा मुतज़ाहमा, लेकिन उसके मानी क्या है, बहुत सारे, मानी बहुत सारे हैं। मुतज़ाहमा के माने बहुत सारे, मुतज़ाहिमा तो बहुत सारों को जमा करने वाला, मुतज़ाहिमा माने जामिया, बहुत सारों को जमा करने वाला है। पर मिसाल अव्वल, तो पहली मिसाल तज़म्मना कलिमतैन, वहाँ पर क्या है, दो कलिमे हैं। पहली मिसाल में कितने कलिमे हैं? दो कलिमे। ठीक है, दो कलिमों को शामिल किया गया है।
कौन कौन है वो दो कलीमे कौन कौन है? लहुल खल्क़ वल अम्र, अल खल्क़ वल अम्र। हाँ, इस्तौअबता, वो दोनों कलीमे क्या कर रहे हैं? शामिल कर रहे हैं, घेर रहे हैं जमीअल अशियाई, तमाम चीज़ों हैं दो कलीमे, मगर वो क्या है? दो कलीमे पूरी अशिया को घेर ले रहे हैं, हर चीज़ को घेर ले रहे हैं। वश्शून अला वजहिल इस्तिस्काई, और हर किस्म के मामले को क्या कर रहे हैं? वो घेर ले रहे हैं। अब कुछ भी बाकी नहीं है, सारी चीज़ें आ गई और सारे मामलात आ गए उसमें। अला लहुल खल्क़ बोलो तो सारी चीज़ें आ गई, और अम्र बोलो तो सारे मामलात आ गए। हत्ता, यहाँ तक कि लक़द रुया अन्ना, रिवायत बयान की गई है, अन्ना इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़रअहा, जब इस आयत को पढ़े, फ़क़ाला, उन्होंने फरमाया आपने, मन बक़िया लहू शैउन फ़लयतलुबहु, जिस किसी के पास कोई चीज़ बाकी है तो वो उसको तलब कर ले। अब है वहाँ खल्क़ और अम्र बोले तो बुरी चीज़ें चली गई, सब अल्लाह के पास है। अब जब है नहीं तो कोई भी किसी से कैसा मांग सकता, ये मतलब है इसका। तो बतौर ताज्जुब क्या आपने कहा था हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला। अच्छा, वल मिसाल सानी, और दूसरी मिसाल, आयतुन फिल बलागति वल हुस्न, क्या है? दूसरी मिसाल क्या है? हुस्न व बलागत का बहुत ज़बरदस्त नमूना है। दूसरी मिसाल कौन सी? वो अज़्ज़ईफ़ व अमीरुर रक्बी, ये बलागत और हुस्न में कमाल दर्जे की है ये दूसरी मिसाल। फ़क़द जमअ मिन आदाब सफ़री वल अत्फ़ी अला ज़ईफ़ी, उसमें तो उसमें क्या क्या? फ़क़द जमअ, जुमिया, उसमें जमा कर दी गई, मिन आदाब सफ़री, आदाब सफ़र को, वल अत्फ़ी अला ज़ईफ़, और ज़ईफ़ कमज़ोरों पर किस तरह मेहरबानी करना, उन दो चीज़ों को जमा कर दिया गया। मा ला यसहुलु अलल बलीग़ी, जो कि क्या है? किसी बलीग या अदीब के लिए, हाँ, आसान चीज़ नहीं है किसी बलीग के लिए, अन युअब्बिर अन्हु, कि वो इसकी ताबीर दे, इल्ला बिल क़ौलिल मुसहबी, मगर एक लंबी बात से, मुसहबी तवीली, एक लंबी दराज बात से उसको ताबीर दे सकता है। बलीग के अलावा कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। कोई ज़ईफ़ अमीर, तो दो में क्या हो गया? यानी दो में कितनी चीज़ें मालूम हुई हमारे को, कि एक तो सफ़र के आदाब भी मालूम हो गए इसमें, और कमज़ोरों पे कैसा मेहरबानी करना दौरान सफ़र, वो भी चीज़ मालूम। तो ये कोई बलीग रहा तो ही इसकी ताबीर दे सकता, अदरवाइज कोई भी नहीं दे सकता। ये दो थॉट को बयान करने के लिए आपको कम से कम एक 3-4 लाइन होना पड़ता, मगर इतने से टुकड़े में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा बयान कर दिया, देखिए, है ना। अच्छा जी, वकदालिकल हाल फिल मिसाल सानी, इसी तरह तीसरी मिसाल का भी हाल है। वहादल उस्लूब मिन मिनल कलामी, और इस तरह का, और इसमें भी देखो तीसरी मिसाल में क्या है, देखो, लिल्लाहि फी यदी, वाला माल तो अल्लाह का है रे ये, मगर ये मेरे हाथ में है। अभी इसको बोलने के लिए खाली कितने दो ही जुमले बोला, देखो, लिल्लाहि यदी, दो ही जुमले बोला, मगर उसमें दो जुमले में कितना बड़ा मफहूम है, देखो आप, कि अलमालु लिल्लाहि वलाकिन्नल आना फी यदी वलाकिन्नहा आना फी यदी, इतना बड़ा जुमला था, उसको क्या कर दिया? लिल्लाहि फी यदी बोला, बस एक ही जुमले में मुख्तसर कर दिया उसको। अच्छा जी, वहादल उस्लूब मिनल कलाम युसम्मा इजाज़न, इस टाइप का जो भी स्टाइल है, उस्लूब है, उसको इजाज़ कहा जाता है। वलम्मा काना मदारुल इजाज़ हुना अला इत्तिसाइल अल्फाज़िल क़लीलती लिल मानी मुतकाफ़िरा वल अग़राज़ अल मुतज़ाहमा, और जब इजाज़ का क्या हो मेथड क्या है? अल्फाज को, कम अल्फाज को जमा करना, और बहुत से मानी के लिए, और बहुत से डिफरेंट टाइप के मक़ासिद को, अग़राज़ को जमा कर देना। ला अला हस्फी बादिल कलिमातिन औ जुमलिन, ना कि कलिमात, बास कलिमात और जुमलों को हस्फ करने के तरीक़े पर। सुम्मिया इजाज़ु क़स्र, तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है? इजाज़ु क़स्र। तो इजाज़ु क़स्र में क्या होता है? अल्फाज कम होते हैं मगर मानी बहुत होते हैं। वल अग़राज़ुल मुतज़ाहमा, और अग़राज़ भी जो उसमें जो उसके रीज़न भी हैं, क्या हो जाते हैं? बहुत सारे जमा, डिफरेंट उसके लिए, गर्ज़ों के लिए बोला जाता है।
हाँ, और उसमें कोई हज़फ, कोई कलिमा हज़फ करते हैं ना कोई जुमला हज़फ करते आप, तो उसको कहते हैं ईजाज़ ख़ास। अब दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे, दूसरे पैराग्राफ के पहले मिसालें पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा। क्या है कि तेरा रब आएगा और फरिश्ते क्या हो जाएंगे, सफ बसफ बना करके खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, दूसरी मिसाल है फिफ्थ वन। क़ाल अल्लाह तआला, अल्लाह ताला का इरशाद है, क़ाफ वल क़ुरानिल मजीद, क़ाफ और कुरान मजीद की कसम, बल अजिबू अन जाअहुम मुंदिरुम मिनहुम, बल्कि वो ताज्जुब में पड़ गए अहले कुरैश, अन जाअहुम मुंदिरुन मिनहुम, कि उनके पास क्या है, उन्हीं में से एक डराने वाला आया। क़ाल तआला, और अल्लाह ताला ही का इरशाद है, फ़ी हिकायती मूसा अलैहिस्सलाम मा इब्नतै शुऐब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से में जो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के साथ कुरान में मौजूद है ना। फ़सक़ा लहुमा, तो उन्होंने सिक़ायत को क्या है, सैराबी को पेश किया उन दोनों के लिए, यानी हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की दो बेटियों के लिए, मतलब उनके जानवरों को सैराब किया। कौन? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। वो है ना, वो क़िस्सा पूरा इम्तियाज़ जहन में है नहीं है। तो हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां भी वो कुएं के पास, हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किप्ती को मारकर जब जंगल में गए तो एक कुएं के पास बैठे थे। हाँ, तो वो शुऐब अलैहिस्सलाम की दो बेटियां हैं वहाँ जानवरों को पानी पिलाने के लिए, सखा उसी को कहते हैं कि, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेचारे दोनों क्या हैं, कमज़ोर हैं, वो बोल गए, इन्होंने उठे, हज़रत उठ के क्या कर दिया, उन दोनों की मदद के तौर पे उन दोनों के जानवरों को पानी पिला दिया। सुम्मा तवल्ला, फिर वो पलट के आ गए, इला दिल्ली, साए की तरफ, उन लोगों को पानी पिला दिए, पलट के साए की तरफ आ गए। फ़क़ाला, और कहा उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ऐ मेरे रब, इन्नी लिमा अंज़लता, इन्नी मिन खैरिन फ़क़ीर। क्या है बोले कि वो कि मुड़ के साए की तरफ चले गए और कहा, है मेरे रब, बेशक मैं उस खैर का मोहताज हूँ जो तू मेरी तरफ भेजने वाला है। लिमा अंदलता, जो तू मेरी तरफ भेजने वाला है, मैं उस खैर का मोहताज हूँ। मतलब अब जो भी मैं इन लोगों की मदद कर दिया, अब जो भी इसका बदला सिला मिलेगा, मैं उसका मुंतज़िर हूँ, मैं उसके इंतज़ार में हूँ, वह बल्कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दिल में ख्याल कर लिए, बोले ने उन लोगों को। फ़जाअतहु इहदाहुमा, तो उन दोनों में की एक लड़की आई उनकी तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, हाँ, तमशी, चलते हुए, अलस्तिहयाइन, शर्मा के चलते हुए आई उनके पास। क़ालत, और उसने कहा, इन्ना अबी यदऊका, मेरे वालिद शुऐब अलैहिस्सलाम, यदऊका, आपको बुला रहे हैं, लियज्जिया का, ताकि आपको बदला दें, अजरा मा सक़ैत लना, जो आपने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। ठीक है, अब ये सारे एग्जाम्पल में देखो क्या है, ईजाज़ो हस्फ रहेगा, ईजाज़ो हस्फ रहेगा सारों में। तअम्मल, बहस में आइए, तअम्मल अम्सिलत ताइफत तानिया, आइए सेकंड पैराग्राफ की मिसालों को गौर करें। तजीद, आप पाएंगे, अन्नहा मूजज़तुन, सारे के सारे क्या हैं, शॉर्ट हैं। ऐदन, सारे के सारे भी क्या हैं, वो भी शॉर्ट हैं। वइज़ा अरदत अन तारिफ़ सिर्रल एजाज़ी, और आप जब चाहेंगे कि ईजाज का राज जाने, फ़ीहा, उनमें, फंजुर इलल मिसालिल अव्वल, तो पहली मिसाल को देखो। तजिद, आप पाएंगे, अन्ना क़द हुज़िफ़ मिन्हु कलिमता, क्या है, वहाँ पर एक कलिमा हज़फ कर दिया गया है, इज़, जबकि तक़दीर कलामी, ओरिजिनल कलाम ऐसा था, फ़ीही, उसमें क्या था, वजा अम्रु रब्बिका, ऐसा था असल कलाम। क्या है वो, कौन सा, जा रब्बु का है ना, जा अमरु रब्बी का, ऐसा था ओरिजिनल कलाम। तो अमरु को क्या कर दिया गया है, वहां पर हज़फ कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, यानी अल्लाह का मामला क्या है, अल्लाह का मामला यह है, अल्लाह का मामला आएगा और फरिश्ते सब बना के खड़े हुए होंगे, मैदान हश्र का है। अच्छा, वंजुर इलल मिसाल सानी, फिर दूसरी मिसाल को देखो। तजिद, आप पाएंगे, अन्नहु हुज़िफ़त मिन्हु जुमलतु हिया, जुमलतन, हुज़िफ़त मिन्हु जुमलतुन, वहाँ पर भी एक जुमला हज़फ कर दिया गया है। हिया जवाबुल क़सम, वो क्या है, क़सम, जवाब क़सम है। कौन सी मिसाल में, ये
वल्कुरान मजीद बल अजीब जो ये इसमें इज़ तक़दीरुल कलामी, जबकि ओरिजिनल कलाम कैसा है, ऐसा है खाफ वल्कुरान मजीद ला तुबअसन, ये देखो क्या है वो कुरान, अल्लाह खाफ कुरान मजीद की कसम, आपको भिजाना, बल अजीबू, आपको भिजाने की वजह से वो ताज्जुब में पड़ गए, ऐसा। तो बल से पहले क्या है, लतुबअसन, ये छुपा हुआ है वहाँ पर, हज़फ है वहाँ पर। ताज्जुब में पड़ गए बोलो तो कैसा ताज्जुब में पड़ गए बोलो, आपके भिजाने को ताज्जुब में पड़ गए, आपको भिजाने पर क्या हो गए, वो ताज्जुब में पड़ गए कि हम में से ही कोई डराने वाला आया, ऐसा बोलते। अम्मल मिसाल सालिसु, रही तीसरी मिसाल, फल महदूफ फीहा, उसमें महदूफ क्या है, जुमलुन अदीदतुन, फीही जुमलुन अदीदतुन, उसमें चंद जुमले महजूफ हैं। व नज़्मुल कलामी मिन गैरि हस्बिन, और क्या है, कहाँ पर, हाँ, और तकदीर इबारत क्या है इसकी, हज़फ कर दिया गया है तकदीर इबारत, हाँ, तरतीब व नज़्मुल कलामी, और कलाम की तरतीब मिन गैरि हस्बिन, बगैर हस्ब के, अयुक़ाल आए कि कहा जाए, ऐसा कहना फ़ज़हबता, तो वो दो, देखो कहाँ पर ये है ना, फ़सक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्लि फ़क़ाल रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता, इन्नी है या नहीं है, मैं वो इन्नी मिन खैरिन फ़क़ीर, यहाँ हो गया कि ऐ मेरे रब, क्या करे वो उन दोनों को, जानवरों को पिला दे के पीछे पलट गए वो साए की तरफ, और अपने आप में कहा उन्हें, ऐ रब करीम, जो कुछ भी मैंने भलाई की मैं उसके इंतज़ार में हूँ, हाँ, मैं उसका मोहताज हूँ, वो बोल के पीछे हट गए ना इन्हों। ये फजाअत से पहले ये छुपा हुआ है, देखो फ़ज़हबता, यहाँ पर डायरेक्ट फजाअत हूँ, इन्हों सोच रहे हैं दिल में ऐसा, फजाअत हूँ इहदाहुमा बोल के कुरान में है, देखो उन दोनों में की एक शर्माते हुए उनके पास आई और बोली, इन्ना अभी इतनी दूर में उन्होंने कहाँ गए, वहाँ वो जिक्र ही नहीं है, देखो कुरान में उन्होंने वालिद के पास गए, जाके उनके वालिद बोले ऐसा किस्सा सुना, ऐसा ऐसा एक बेचारा अल्लाह का बंदा, हम दोनों की मदद करा, वो तो फिर जब उनके वालिद बोलते जाओ उनको बुला के लाओ बोलते, तो वहां पर क्या जुमला छुपा हुआ है, देखो फ़ज़हबता इला अबीहा, वो दोनों अपने वालिद के पास गई, वख़स्सता अलैहि, और उनको सारा किस्सा सुनाया, मा काना मिन अमरी मूसा, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ पेश आया, फ़अरसला इलैहि, तो उनके वालिद ने उनकी तरफ भेजा, फ़जाअत इहदाहुमा, अब उनमें की एक शर्माते हुए उनके पास आई मूसा अलैहिस्सलाम के पास, तो इतना बड़ा जुमला वहाँ पर क्या है, छुपा हुआ है, हाँ, ओके। वलम्मा काना सबबुल इजाज़ी फ़ी हादिही लम्सिलती हुवल हस्फ़, तो यहाँ पर इजाज़ का सबब क्या है, वो हस्फ़ है, सुम्मिया इजाज़ु हस्फ़िन, तो इसका नाम इसीलिए रखा जाता है इजाज़ु हस्फ़। वयश्तरितु फ़ी हाज़ा अन-नौअ मिनल इजाज़ अन यक़ूम दलीलुन अल-महज़ूफ़, महज़ूफ़ क्यों हज़फ करे, उस पर एक दलील भी कायम करना ज़रूरी है, एक कंडीशन है इसके साथ कि इस टाइप की जो भी इजाज़ हैं, इजाज़ हस्फ़ वगैरह में आप एक महज़ूफ़ क्यों गया हुआ है, बल्कि मजबूत दलील कायम करके जाना, वही ला कानल हस्फ़ु रदीअन, वरना क्या हो जाएगा, हस्फ़ आपका बेकार जाएगा, वल कलामु गैर मक़बूल, और कलाम क्या हो जाएगा, गैर मक़बूल हो जाएगा। अगर कोई आप रीज़न नहीं दिए या फिर कोई वहाँ पर करीना ना हो, कोई दलील कायम नहीं करे, तो वो हस्फ़ आपका बेकार हो जाएगा, समझ रहे, ठीक है ना, कुछ डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। हाँ, अच्छा जी, तो अब पहली मिसाल में क्या क्या है हज़फ, बोलो, फोर्थ मिसाल में क्या हज़फ है, बोलो, वजा अमरू छुपे हुआ है, नहीं हुआ, वजा अमरू, हाँ हाँ जी। अब फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या छुपे हुआ है, इम्तियाज, क़ाफ़ वल कुरानिल मजीद बल अजिब अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहु, हाँ जी, अच्छा जी। फिर सिक्स्थ एग्जाम्पल में क्या छुपा हुआ है, ये कहाँ पर, ये खैरिन खैरिन फ़कीर के बाद छुपा हुआ है, ये क्या छुपा हुआ है, ये बड़ा जुमला छुपा हुआ है पूरा, फ़ज़हबता इला अबीहा वख़स्सता अलैहि मा काना मिन अमरी मूसा फ़अरसला इलैहि,
फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाई, वहाँ से वो कुरान की आयत है, समझ गए? जी सर। जी सर। ठीक है, नमूज़ज आइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाम मोहम्मद साहब आए नहीं आए अभी भी? है गुलाम मोहम्मद साहब? नहीं, आराम कर रहे हैं। चलो बिस्मिल्लाह। अटेंडेंस लगा के चले गए। लाइन पे तो है ना? हाँ शो कर रहा है बल्कि। हाँ, नहीं नहीं, सो गया होंगे सुनते सुनते। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमूज़ज, नमूज़ज देखेंगे उसका। ली बयानी नौइल इजाज़ फ़िल इबारातिल आतिया, आने वाली इबारतों में नमूने देखिए इजाज़ के। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला का इरशाद है, उलाइका लहुमुल अम्न, उलाइका लहुमुल अम्नु, यही वो लोग हैं जिनके लिए अमन है। हाँ, इजाबा भी साथ में पढ़ लेंगे ना? हाँ आइए, इजाबा में देखिए बाजू। फिल आयती इजाज़ु क़स्र, पहली आयत में क्या है? इजाज़ु क़स्र है। क्यों? लिअन्ना कलिमत अल अम्न, क्योंकि कलिमा अल अम्न यदखुलु तहतहा कुल्लु अम्रिन महबूबिन, उसके अंडर में क्या होता है? हर पसंदीदा मामला आता है, हर पसंदीदा चीज़ उसके अमन के अंडर में है। अमन बोले तो हर किस्म की आज़ादी मिलती आपको नहीं, अगर अमन नहीं हुआ बोलो तो कई चीज़ें, कई आज़ादियाँ आपकी ख़त्म हो जाती नहीं। अच्छा जी, हाँ। फ़क़द इंतफ़ा बिहा, नफ़ी करता है इस आयत में, अन यख़ाफ़ु फ़ख़रन, कि कोई शख्स क्या है? फ़ख्र से मर जाए, औ मौतन, या मौत से मर जाए, औ जौरन, या जुल्म से ख़त्म हो जाए, हाँ, या जुल्म से खौफ खाए, औ ज़वाल नेमतिन, या ज़वाल नेमत के ख़त्म हो जाने से खौफ खाए, वग़ैरु ज़ालिका मिन अस्नाफ़िल मकारी, इसी टाइप की जितने भी नापसंदीदा चीज़ें हैं, नापसंद की चीज़ें हैं, उनसे क्या है? उससे बचा हुआ रहता हो। उन लोगों की सबकी नफ़ी हो जा रही इसमें नहीं, अमन बोलते ही ये सारे चीज़ों की नफ़ी हो जाती, किसी चीज़ की नफ़ी हो जाती, क्योंकि कोई भूख से मर जा रहा, हाँ, कोई बीमार होके मर जा रहा, या कोई जुल्म से मर जा रहा, या कोई किसी की नेमत छीने जा रही, या कोई भी नापसंदीदा चीज़ें हो जा रही उसके साथ, तो इन सारी चीज़ों से वो बचा हुआ रहता है। अमन का यही माना। तो लफ्ज़ क्या है? मुख्तसर है, मगर उसके माने क्या है? बहुत वसी और कुशादा, और इसमें कोई हज़फ भी नहीं हुआ है ना। अच्छा जी, नंबर 2 पे आइए। वक़ाल तआला, अल्लाह ताला ही का इरशाद है, तल्लाही तफ्त क्या है? मैं पढ़ो, आयत पढ़ो ज़रा। तल्लाही तफ्तऊ है। वल्लाहि तफ्तउ तज़कुरु यूसुफ। हाँ, तल्लाही तफ्तऊ तज़कुरु यूसुफ़ा, कि अल्लाह की कसम, क्या है? अल्लाह की कसम, आप यूसुफ को बराबर याद करते रहेंगे। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा है ना, उसमें क्या है ये? तल्लाही बतो, अल्लाह की कसम, तफ्तऊ, माफ़तिया का है वो, अफ़ाल नाक़िसा है नहीं वो, माफ़तिया, मा बरिया, यानी माफ़तिया मा ज़ाला के माने हैं हमेशा नहीं, मतलब हमेशा नहीं, मतलब ये कभी कभी नहीं, मतलब हमेशा। कभी कभी नहीं आप यूसुफ को याद करेंगे, तो मतलब आप हमेशा ही यूसुफ को याद करेंगे। तो वहाँ पर क्या छुपा हुआ है देखो। फिल आयती ईजाज़ु हस्फ़िन, तो ये आयत में क्या है? ईजाज़ हस्फ़ है। लिअन्नल माना, क्योंकि उसका माना तल्लाही ला तफ्तऊ है, असल में वो ला क्या है? नाफिया है। फहुदिफा हरफुन नफ़ी, वहाँ पर हरफ नफ़ी को, ला को क्या कर दिया गया है? महजूफ कर दिया गया है। यानी कभी कभी नहीं, हमेशा। ये मतलब कभी कभी नहीं, मतलब हमेशा आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद फरमाते रहेंगे। वो याकूब अलैहिस्सलाम से बोले थे शायद। अच्छा जी, इसके बाद आइए। वक़ाल अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला का इरशाद है, अखरज मिन्हा माअहा व मरआहा। अच्छा, उसने ही, अल्लाह ही ने ज़मीन से क्या है? पानी को निकाला और चारे को निकाला। मरआ मीन्स चारा, ज़मीन ही से अल्लाह ने क्या निकाला? पानी को निकाला और चारे को निकाला। ये कौन सी मिसाल है? देखो, फिल आयती, आयत मुबारका में, तीसरी आयत में इजाज़ क़स्र, इजाज़ क़स्र है। फ़क़द दल्लल्लाहु तआला बिकलिमतैन अला जमीअ मा अख़रजहु मिनल अर्ज़ि
क़ूतन व मताअन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो कलीमों को यहाँ पर अल्लाह ताला ने दलील के तौर पर पेश किया है उन तमाम चीज़ों के बदले में जिसको ज़मीन निकालती है, चाहे वो ग़िज़ा हो या मताअन लिन्नासी, लोगों के लिए कोई फ़ायदे की चीज़ हो, मिनल उशबी, जैसे कि घास हुए, व शजर, और लकड़ी है, वल हतब, और क्या है वही जलाने वाली लकड़ी हो, वल लिबास, और पहनने की चीज़ें हैं, वल नार, आग है, वल माँ, और पानी है ना। इन सारी चीज़ों को एक ही लफ्ज़ में बयान कर दिया अल्लाह ताला ने, क्या क्या मरा, चारा भी है और पानी भी, ठीक है। अब पानी से क्या बनता, सो भी लोगों के फ़ायदे की चीज़ें सब उसी से बनती, पानी से, चारे से भी वही है, तो इंसान और जानवर खाते ना, खेती बाड़ी, दरख्त के फल, ये वो सब। तो दो लफ्ज़ों में सारी चीज़ें क़स्र हो गई, मगर यहाँ पर ये इजाज़ व क़स्र है, ना कि इजाज़ हस्फ़ है, ठीक है। कोई भी हज़फ नहीं है, इजाज़ व क़स्र है, यानी पूरे कलीमे नेमतों को गिनाने के बजाय खाली दो ही चीज़ों का जिक्र अल्लाह ताला ने किया, माउन और मरा, दो चीज़ों को जिक्र किया, उसमें सारी चीज़ें आ जाती, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आइए, वक़ाल अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला ही का इरशाद है, फ़अम्मल लज़ीना स्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअदा ईमानिकुम, और अल्लाह ताला का इरशाद है, बस रहे वो लोग, हाँ सुन रहे हैं, सो गए, हाँ जी सर, सर, सुन रहे सर। हाँ, बहरहाल वो लोग जिनके चेहरे सियाह होंगे, हाँ, जिनके चेहरे सियाह हो गए, अकफर तुम, क्या तुम कुफ्र किए, बादा ईमानिकुम, तो उनसे कहा जाएगा, अकफर तुम बादा ईमानिकुम, क्या तुम तुम्हारे ईमान लाने के बाद कुफ्र इख्तियार कर लिए थे क्या, ये कहा जाएगा उनसे। कौन सा एग्जाम्पल है ये, फोर्थ वन को देखिए, फिल आयती इजाज़ हस्फी, ये आयत में इजाज़ हस्फ है, कोई चीज़ हज़फ हुई, यहाँ पर क्या हज़फ हुई, फ़क़त हुज़िफ़ा जवाब अम्मा, अम्मा का जवाब हज़फ है वहाँ पर, हाँ, रहे वो लोग जिनके चेहरे, वो क्या है वो जवाब अम्मा का, व असलुल कलाम, ये ओरिजिनल कलाम ऐसा था, फ़युक़ालु लहुम, कफ़रतुम से पहले ये छुपा हुआ है वहाँ पर, का युक़ालु लहुम, फ़अम्मल लज़ीना, रहे वो लोग जिनके चेहरे काले हो गए, फ़युक़ालु लहुम, उनसे कहा जाएगा, अकफ़रतुम, क्या तुमने कुफ्र इख्तियार कर लिया, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, ये ओरिजिनल वर्ड ऐसा था, तो ये इजाज़ु हस्फ है। अच्छा जी, उसके बाद फिफ्थ वन आइए आप, हाँ आ गए फिफ्थ वन, वलौ अन्न कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबालु औ कुत्तिअत बिहिल अर्दु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीअन, कि अगर कुरान के ज़रिए पहाड़ों को चलाया जाए, या उसके ज़रिए ज़मीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएँ, या उसके ज़रिए मुर्दों को बोलने की इजाज़त दी जाए, बल्कि तमाम फ़ैसले अल्लाह ही के हाथ में हैं। तो मतलब कुरान में इतनी तासीर है कि पहाड़ भी चलने लगे, और ज़मीन के टुकड़े टुकड़े हो जाए, और मुर्दे भी बोलने लगे, हाँ, मगर सब ये मामले क्या हैं, अल्लाह के हाथ में है, अगर अल्लाह चाहे तो ही हो सकता है ऐसा, अदरवाइज नहीं। अच्छा जी, हाँ क्या है, देखो आप इसमें क्या है, ये एग्जाम्पल में फिल आयती इजाज़ बिहस्फी जवाबी लौ, ये आयत करीमा में क्या है, हस्फ, इजाज़ हस्फ है, और लौ का जो जवाब है वो हज़फ कर दिया गया है, इज़ तक़दीरुल कलामी, तो उसका तक़दीर कलाम कैसा था, ओरिजिनल में छुपा हुआ कलाम कैसा है, वो ये लकाना हादल कुरान, तो यही वो कुरान था, ऐसा मतलब है उसका। वलो अन्ना कुरान, अगर क्या है उसका मतलब, अगर कुरान के ज़रिए पहाड़ों को जलाया जाता, ज़मीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, और मुर्दों को बोलने की परमिशन दी जाती, तो वो इसी कुरान से होता, लकाना हादल कुरान, तो इसी कुरान से होता, ऐसा। वो लकाना हादल कुरान क्या है, छुपा हुआ है, तो इजाज़ हस्फ है। छठवां ये वक़ाल अबू तय्यब, और अबू तय्यब अल-मुतनब्बी कहता है, अतज़ ज़माना बनूहु फ़ी शबीहतिही फ़ी शबीबतिही फ़सर्रहुम व अतैनाहु अलल हरमी, के ज़माना क्या है, बेटे, ज़माने के बेटे मतलब पिछले लोग, ज़माने के बेटे ज़माने के पास उसकी जवानी में आए, ज़माने के बेटे ज़माने के पास उसकी जवानी में आए, फ़ी शबीबतुन बोले तो जवानी, बनूहु बोले तो ज़माना, उसके बेटे उसकी जवानी में आए, ज़माने की जवानी में आए,
फसर्रहुम, तो उसने उनको खुश कर दिया, फसर्रहुम तो ज़माने ने उनको खुश कर दिया, व आतैनाहु अलल हरमी, और हम उसके पास क्या है, कब आए, बुढ़ापे में आए, हम उसके पास बुढ़ापे में आए। अब यहाँ देखो क्या छुपे हुआ है, क्या है, छिटवा है ना ये, फिल बैती ईजाजु हस्फी बिहस्फी जुमलतिन, यहाँ पर ईजाजुल हस्फ है और एक जुमला यहाँ पर छुपा हुआ है। वह तकदीर, उसकी तकदीर कैसी, आतैनाहु अलल हरमी फसाअना, हम यहाँ पर कब आए, बुढ़ापे में आए, हाय अफसोस हमने बहुत बुरा किया कि बुढ़ापे में आए, यह है असल जुमला। हाँ, ज़माने के बेटे उसकी जवानी में आए तो ज़माने ने उनको खुश कर दिया, और हम कब आए, बुढ़ापे में आए, तो मतलब फसा अना, हम बुढ़ापे में आके क्या कर दिए, बहुत ही बुरा काम कर दिए हम। अगर हम भी जवानी में आते तो हमारे साथ भी ज़माना क्या करता, हमको भी खुश करता, ये मतलब है। तो अलल हरमी के बाद फसा अना क्या है, छुपा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। और नंबर 7th एग्जाम्पल क्या है, अकल तो फाकिहतन व माअन, अकल तो फाकिहतन व माअन, मैंने मेवा खाया और पानी पिया, मैंने मेवा खाया और पानी पिया। 7th वन में देखो, फिर इबारती ईजाज़ु बिहस्फी जुमलती, पूरे एक जुमले का हस्फ है, कैसा, तकदीर कैसी है उसकी, ओरिजिनल वर्ड कैसा है वो, अकल तो फाकिहतन व शरीबतु माअन, तो शरीबतु को क्या कर दिया, पूरे एक जुमले को हज़फ कर दिया गया है। और हो गया पेश जी। फिर बाकी है, सर बाकी है, नाइस हो गया सर। नाइस फिर ये भी पढ़ लेते क्या, इतना हवा नहीं सर नहीं पढ़ सकते हुए हैं, आधा घंटा तो ही हुआ ना जी, नहीं, कितने 47 मिनट्स हुए अभी तो। हाँ, नहीं पढ़ सकते हुए हैं, क्या कर रहे हैं घर में तो लोग।